एक जगह उनको वो अटक भी गई थी कुवैत में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो उन्हीं के मुंह से सुनते हैं गुरुजी की महिमा का गुणगान, क्योंकि वो हम सबको गुरुजी से उनका प्रेम भी बहुत है, गुरु की सीख भी, गुरु की कृपा से गुरु की सीख भी उनके पास बहुत है, वो हम सबके साथ बांटने वाली हैं। तो अनिता, गुड मॉर्निंग एंड जय गुरु जी। Jai Guruji, Jai Guruji. Thank you for having me. Thank you. जी, प्लीज टेक ओवर एंड गुरु जी की महिमा का गुणगान करिए। थैंक यू सो मच। Thank you. Jai Guruji, everyone. So I will start my journey a little bit from the beginning, like before Guruji's Mahasamadhi, or after his Mahasamadhi. So before this Mahasamadhi in 1998, from 88 actually, I came to India in 88, born and bred in Manchester. I was born with literally a cocktail of health issues, from hole in the heart to asthma, which was crippling my life from my childhood, in and out of hospitals, and then eczema. So it was kind of related, asthma and eczema. It is all allergies. And my parents were actually told by, I'm so sorry, there's so many calls coming today. So um, my parents were actually told that it's a precarious situation with a hole in the heart. It is life threatening, and she will not exceed the age of 10. So you can imagine the stress that my parents went through while raising me, because they felt I will not survive beyond 10 years old. But somehow, like, Guruji is always with us, God is always with us, before, now, and after. It is an eternal bond with our Guru. So I did exceed that 10, of course. And my teenage years were relatively smooth. And then I came to India in 1988. And again, my health issues precipitated to another level. I was now hospitalized every changing season for asthma, severe asthma. And I was in the ICU on steroid injections and subsequently steroid tablets. So, of course, as we know and understand, steroids, hydrocortisones have a lot of side effects, especially taken long term. At the age of 32, I had cataract in both my eyes. I didn't understand what cataract was back then, too young to even have it. But I could just see fog. And the doctor said, you have to have immediate surgery, otherwise, cataract can lead to blindness. So I had the cataract surgery at the age of 32. And thereafter, a Sangat, Bambi Singh auntie, so she was my social friend back then. And she said, "Okay, you come to my Guruji, you look very distressed." I recall that day very clearly. We had gone as a family, her family and my two girls and her two girls, to Shimla on vacation. And we went, and my skin from head to toe was covered in this ghastly rash. And there was pus, and if I smiled, my face would just peel off. It was cracking with the dryness. And she looked at me. She said, "You look very distressed. I don't know what you have, but naturally, like, I have observed that every changing season you're in hospital. So it's not a good, healthy situation. Why don't you come to my Guruji?" I said, "Nay, Bambi, I have been to many gurus and babas and pandits, and it's all been in vain. I don't believe in all this. I'm sorry." And she kept insisting, I kept resisting. Finally, she landed up in my home. It was Thursday evening, 6 p.m. She had already informed Guruji. And she pulled me out of my home. She said, "Ho gaya, I am taking you." So in the car, she kept sharing her satsangs. But at that point, I didn't even understand what satsangs meant. So it was falling on deaf ears. I thought, she's a good friend of mine. I must oblige her, but I'm not interested. So I went, she said, "You go with an open mind and an open heart." I did the exact opposite. I went with a closed mind and a closed heart. I thought I'll get this over and done with and never have to go back again. That was my thought process. As we walked into Chota Mandir, as we know it today, Guruji was sitting on his gaddi.
very uncharacteristic of a guru. He was sitting with his shorts, t-shirts, trainers. I remember that day as vividly as if it was yesterday. And he was radiant. He was resplendent, to say the least, and glowing like the stars and the moon combined. अनिता, हाँ जी. थोड़ा सा हिंदी भी मिक्स करें तो Oh, बेहतर होगा sorry. You संगत know, के I लिए. tend to flow. Yes, yes. Yeah, I Sorry, know, I I'm know. so No, no, sorry. not a Yes. problem. Please. Yes. तो Thank you. वो गुरुजी was glowing, and जैसे मैंने मत्था टेका, um, जैसे मैंने मत्था टेका, I just knew in my heart कि मैं सही जगह आ गई हूँ. Just to rewind a little bit, जब मैं इंग्लैंड में, I was growing up in England, and मेरे फादर का एक बहुत बड़ा गार्डन होता था, and I used to walk. And I used to, because I was so unwell, I used to gaze up at the sky. And मैं भगवान के साथ बातें करती थी. तो मैं डायरी भी लिखती थी, डे गॉड, every day, and I would write my sentiments. And when I was walking, I would walk as a child, and मैं ऊपर देखती थी. And I remember this very clearly. 11 साल की थी मैं. And ऊपर देखती थी तो कहती थी, भगवान आप हैं वहाँ पे. And one day I would love to meet you, and I would love to have a cup of tea with you. Naturally, I was born and bred in England, so that there was an element of, that British nature in me also. So I said, I'd love a cup of tea with you. And just see, years later, मैं गुरुजी को जब मिली, मत्था टेका, मुझे पता था, मेरी सोल को पता था कि मैं सही जगह आ गई हूँ. And he smiled as if knowing that, you know, of course he called me. So he had invited me into his fold. And इसमें कोई शक नहीं है, वही बुलाते हैं गुरुजी. एंड जैसे मैंने मत्था टेका तो गुरुजी ने कहा कि तू बड़ा भटक के मेरे को लाई है, हूं तू सही जगह आई है, चाय प्रसाद पींगी. एंड आई रियली फेल्ट that tea he served that day was truly served from the divine hands. And I knew it at that moment कि मैं सही जगह आ गई हूँ, सचमुच सही जगह आ गई हूँ. And now there is a ray of hope. I was a broken woman when I arrived in 1998, totally broken. My marriage had collapsed, though I was still in it. But it was not a marriage. It was, unhealthy situation. And, but I was still in it, because I'm old school, wanted to push and push till it worked. So from 1988, when I got married, to 98, 10 years, I was still in the marriage, but Guruji knew everything. So he said, looks at me and he said, तू रोज आया कर, रोज आना है और रोज लंगर करना है. तो लेकिन आज चले जा, आज्ञा ले और जा. So he didn't make me stay that day. It was Thursday evening, and I just had the chai prasad and मैं घर आ गई. But I was very excited because, जैसे he had ignited a flame of hope inside me, and truly had ignited it very strong. So वो पुल रोज आता था, फिर रोज जाना शुरू किया. एंड देन चेंजिंग सीजन आ गया दिल्ली में. एंड जैसे चेंजिंग सीजन आया, वहां मैं बैठी थी एक दिन गुरुजी के पास. एंड वेरी क्विकली वाला जैसे जाना शुरू किया, साथ ही चेंजिंग सीजन आ गया था. तो जैसे मैं बैठी थी तो गुरुजी ने कहा, आज पूरा लंगर करना है अगर कल्याण करना है. ऐसे गुरुजी मुझे तो सांस नहीं आ रहा, मुझे तो हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए और मुझे अपने स्टेरॉइड इंजेक्शंस चाहिए. सो ही लुक्स एट द लंगर प्रसाद and he says, एयो तेरे स्टेरॉइड इंजेक्शंस है, कल्याण कराना है, पूरा खाओ. And then I started brawling. I was all of 32. I started crying. I said, Guruji, मुझे सांस नहीं आ रहा, because I was turning black and blue. मैं कहा, गुरुजी मुझे सांस नहीं आ रहा, और ये स्टेरॉइड इंजेक्शंस नहीं है, ये आलू गोभी दाल है, मुझे जाना है. And he said, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ जूती उतार दी है ना नीता, ते अपने इफ सन पर छट के आया कर, खाली होके आया करो, and come as an empty vessel, and then he fills you with what you need as opposed to what you want. And मैंने कहा पता नहीं ये बहुत harsh है गुरुजी, पूरा कैसे खाऊंगी मैं ये इतना heavy. And उस टाइम जब अस्थमा अटैक आता था तो पानी भी नहीं पी सकते, इतना ज्यादा सफोकेशन होने लग जाती है, and it's literally like someone strangling you.
लेकिन एक संगत साथ बैठी थी मेरी और कहते कि आप ना गुरुजी का हुक्म नहीं टालो, आप प्लीज खा लो, जितना खाना है खा लो। आई एट एंड एज आई अबाउट टू हिम टू टेक आज्ञा, मैंने मन ही मन बोला मैंने यहाँ दोबारा नहीं आना, गुरुजी तो बहुत हाश है। तो गुरुजी स्माइल करके बोले कल्याण करागे, जा ऐश कर। तो आई सेड क्या ऐश करूं और क्या कल्याण किया, मैं तो यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाऊंगी, दिस वाज इन माय हेड। एंड देन ही सेड हूं हस्पताल जान दी लोड़ नहीं, कार जा, कल्याण कितना ऐश कर। जैसे मैंने गाड़ी अपनी मनूवर की टू द हॉस्पिटल, मैंने रियलाइज किया कि मैं तो ब्रीथ कर रही हूँ नॉर्मल, लाइक नेवर बिफोर। बिकॉज चाइल्डहुड से लेके इनफैक्ट जब से पैदा हुई थी तो सफोकेशन होती थी ऑल द टाइम ऑन स्टेरॉइड्स एंड इनहेलर्स, ये मेरी लाइफ थी। एंड इतनी इनसिक्योरिटी हो गई थी, ठीक भी होती थी तो इनहेलर मेरे साथ इनसेपरेबल था, इट वाज अ पार्ट ऑफ मी, अ स्पेयर पार्ट। एंड मैं इनहेलर कभी नहीं छोड़ती थी, आज तक नहीं छोड़ती, होता नहीं मुझे अब, लेकिन ऑफ कोर्स कोविड के बाद थोड़ा सा और ट्रिगर हो गया, बिकॉज कोविड does trigger your whatever inherent health issues you have. तो कोविड के बाद दोबारा हो गया, लेकिन ऐसे गॉड ब्लेस, गुरु जी की मेहर है कि कभी अटैक नहीं आया, पर थोड़ी सी ब्रेथलेसनेस होती है तो मैं सिर्फ इनहेलर कैरी करती हूँ। लेकिन जब गुरु जी ने उस टाइम मुझे हील किया था 98 में, तो उसके बाद आज तक कभी अस्थमा अटैक नहीं हुआ और कभी मैं हॉस्पिटल वापस नहीं गई अस्थमा के लिए, कभी नहीं। एक लंगर प्रसाद के साथ गुरुजी ने हील कर दिया। दैट वाज द फर्स्ट मेहर, आई वुड से, जो टेंजिबल थी, जो एविडेंट थी, जो क्लियर एज डे थी, जो मुझे जानते थे फैमिलीज मेंबर्स एंड फ्रेंड्स कि ओ तू अब अस्पताल नहीं जाती। मैंने कहा नहीं, मेरे गुरुजी ने अब मुझे ठीक कर दिया। ये गुरु जी की मेहर है। एंड ऑफ कोर्स चमत्कार नु नमस्कार होता है, लाइक ही यूज्ड टू से, कि पहले तो मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं कौन हूँ, आपको ठीक करके। एंड सबसे पहले तो हमें लाइफ देते हैं, हेल्थ देते हैं, क्योंकि वो सबसे जरूरी चीज है, जान है तो जहान है। सो अ फ्यू मंथ्स लेटर उन्होंने मुझे फिर संगत से बुलाया और बोले कि अनीता तू श्रद्धा में पास हो गई। एंड मेरी प्रायोरिटी, ओनली प्रायोरिटी गुरुजी बन गई थी। जब उन्होंने कहा रोज आना है, उन दिनों में 7 दिन बैठते थे, तो जब रोज आना है तो रोज ही आती थी मैं, मेरी प्रायोरिटी थी वो सब कुछ छोड़ के आना, बिकॉज मुझे इतना प्यार मिलता था गुरुजी से कि मुझे वो प्यार खींचता था। मुझे कोई मांग नहीं थी दिल में, मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि जो है सो है। मैरिज कोलैप्स हो गई, ठीक है। हेल्थ, स्किन तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खराब थी और मुझे शर्म आती थी किसी के साथ, किसी के पास बैठना भी अपने से शर्म आती थी। तो वो सब चल रहा था, लेकिन अंदर का जो सुकून था और वो खुशी थी कि गुरुजी को मिलने जाना है, बिकॉज ऑफ दैट लव ही यूज्ड टू एक्सूड ऑन ईच संगत, तो वो प्यार के लिए मैं जाती थी। And I was very, I had an insatiable appetite for his love. I was very hungry for his love. And एक बार मैं बैठी थी और गुरुजी ने कहा नीता तू श्रद्धा में पास हो गई ना। मेरी इंग्लिश एजुकेशन थी, आज मैं हिंदी पंजाबी सब बोल लेती हूँ विद हिज मेरिट। एंड मुझे नहीं पता था ये श्रद्धा कौन है, पर मैं कहती थी पास हो गई। मैं कहा थैंक यू गुरुजी। एंड गुरुजी को तो सब कुछ पता है, गुरुजी हंसने लगे, कहते कमली समझी भी नहीं मैं कि क्या, तू श्रद्धा में, तेरी श्रद्धा बहुत स्ट्रांग है, तेरे पिछले जन्मां दी कमाई है जो तू ਇੱਥੇ पहले पहुंच के मेरे ਕੋਲ। एंड मैं तेनू नींबू की तरह निचोड़िया, ते ਹੁਣ देखी तेरा स्किन कैंसर ठीक किता। एंड ਹੁਣ तू आईने कोलों ना डरिया कर बाथरूम जान तो पहले। व्हेन ही सेड समथिंग सो पर्सनल कि बाथरूम ना जाया कर बत्ती बंद करके, तो आई सेड हाउ डज ही नो समथिंग सो पर्सनल। एंड मैं हैरान हूँ कि उनको देख रही हूँ कि ये किसने बताया गुरुजी को। तो गुरुजी कहते स्माइल करके कि तू ਤਾਂ बड़ा भटकी है, पिछले साल भी तू किसी एस्ट्रोलॉजर ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਲੇ एस्ट्रोलॉजर ਨੂੰ ਦੱਸ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ
जिन्हें किया सी कि तेरी कोई लाइफ नहीं डिसंबर 97 ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ। ਤੇ मैंने कहा गुरु जी कहते हाँ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈ डिसंबर 97 ਦੇ ਬਾਅਦ ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖ ਪੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਉਹਦਸ ਕੌਣ ਵੱਡਾ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ? ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। एंड आई लर्नड ओवर टाइम कि सचमुच सब कुछ यहीं पे है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ गुरु जी के चरणों में है। ट्रूली एंड लिटरली I really don't feel the need to even go on pilgrimages or go here and there, because I feel he's everywhere and he's, most importantly, he's here and he's in our hearts. आप याद करो, कहीं भी बैठ के याद करो तो गुरुजी वही है। एंड वो शो करते हैं आज भी, आज मोर देन एवर इनफैक्ट, क्योंकि उनकी संगत बहुत बढ़ गई है और वो एक एक दिल में बैठे हैं गुरुजी। लेकिन हमें कनेक्ट करना आना चाहिए, बस याद करो कहते थे। एक घंटा बैठ के, कार बैठ के भी याद करो, कल्ले बैठ के, बिकॉज इट इज आवर सोल जर्नी। ये सोलो जर्नी है हमारी, सोल टू सोल सोलो जर्नी विद गुरु जी। एंड इसमें कोई मीडिएटर्स नहीं है, हम सिर्फ अपना सत्संग सुनाते हैं, एक्सपीरियंसेस सुनाते हैं। वाई? वो भी गुरु जी का कहा हुआ है कि सुनन वाला सुनान वाला दोनों तरफ मेरी लहरें चल दिया ने, तो पता नहीं मैं उस टाइम किसनू ब्लेस कर रहे हैं। जो सत्संग सुनवाते हैं कैंसर के या अस्थमा के या जो भी, वो हो सकता है आने वाला कैंसर ठीक कर रहे हो किसी का, या किसी के फैमिली में है अस्थमा या एक्जिमा तो उसको भी ठीक कर रहे हैं। तो ये गुरुजी जाने, गुरुजी की बातें हमें नहीं पता, हम बहुत छोटे हैं कहने के लिए भी कि गुरुजी कौन है, गुरुजी क्या है। वी आर टू स्मॉल टू इवन डिफाइन हिम। We just know that he is the divine energy. He is the divine light in today's Kalyug, and we are blessed to be connected with him. मैं फिर उसके बाद मेरा स्किन अपने आप क्लियर होने लग गया, एंड विद इन वीक्स एंड मंथ्स मेरा स्किन नॉर्मल हो गया। फिर गुरुजी ने भेजना शुरू कर दिया मुझे वापस मैनचेस्टर। माँ नु मिल गया, माँ ने हैरान हो जाना देख के तेनू। And truly, when I went back to Manchester, my mother said, "Tera skin kis tarah theek hoya?" I said, "Mere Guruji hai." And when I was getting married in India, my mother said, "तू ना इंडिया जा रही है तो बहुत गलबल है, and तू किसी गुरु दे चक्कर नहीं पैना." And when I told her with confidence. I don't know why, because obviously truth बोलने में तुम्हें नहीं डर लगता। तो मैंने कहा मम्मा ये रियल डील है, आप देख लो फोटो। तो जब मम्मा ने फोटो देखी गुरुजी की, तो मम्मा कहती हाँ हाँ ये तो असली महापुरुष ने। I don't know how mom knew also. So this is how, Guruji really validated and said कि तू माँ नू मिल के आ, तू वो हैरान हो जाने उनने। So how she actually was astonished, to say the least. And then she also, and my father also came to India thereafter, and वो भी गुरुजी से मिले और उनकी blessings ली गुरुजी ने। मेरी जर्नी कंटिन्यू होती गई। 1 week before गुरुजी left his body, तो गुरुजी ने कहा कि तेरी सेवा नहीं था, तू जगह जगह जा। First of all, the most humorous part was कि जब मेरा स्किन ठीक कर दिया, एंड मैं इंट्रोवर्ट थी, एंड मुझे पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता था स्कूल में ही। आई वुड नॉट गो ऑन स्टेज, एंड आई वाज वेरी शाय, वेरी इंट्रोवर्ट। तो जब गुरुजी ने एकदम ऐसे हैप्पैज़र्डली बोला खड़े हो और सुना सबनों, मैं तेरा स्किन कैंसर किस तरह ठीक किया। तो मैं बहुत नर्वस हो गई, संगत बैठी थी छोटे मंदिर में। आई स्टार्टेड परस्पायरिंग, एंड देन मैंने कहा गुरुजी ने ठीक कर दिया, और मैं बैठ गई। गुरुजी लुक्स एट मी स्माइलिंगली, एंड ही सेड कि तेनू तो सत्संग भी नहीं सुनाना आता। तो मैंने कहा गुरुजी हाँ जी। तो आई सेड गुरुजी आगे से मत बोलना कभी प्लीज मुझे सत्संग शेयर करने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं आता। तो हंसने लग गए। लेकिन 1 week before he left his body, then he said, Anita, तेरी सेवा है, तू सत्संग किया कर। And I looked at him quite, puzzled कि ये क्या बोल रहे हैं गुरुजी।
तो मैंने कहा गुरुजी आपने तो बोला था मुझे सुनाना नहीं आता। कहते नहीं तू खड़ी हुई सुनावांगा तब मैं। सो ही टेक्स ओवर और एवरी सेवा। ही इज सो ग्रेशियस, सो काइंड, सो लविंग दैट ही ट्रूली टेक्स ओवर। फिर कहते कि तू वापस मैनचेस्टर चले जा और उत्थे सत्संग शुरू कर और माँ दी सेवा कर। माँ बाप दी सेवा जो करदा है बड़े पुण्य लगदे ने और रब बड़ा खुश हुंदा है। माँ बाप दी सेवा करना रब दी सेवा है। सो आई वाज अगेन पजल्ड। आई सेड डैड है वहां पे, मैं क्यों जाऊंगी वापस इंग्लैंड। When I first moved to India, I have to say how we converted. I used to not like India. I disliked India because mere upbringing kafi, obviously England, fresh air, clean food, simplicity. And India आके मुझे बहुत लगता था मैं कहाँ गई हूँ। एंड मैं कहती थी हमेशा कि गुरुजी मुझे वापस इंग्लैंड भेज दो। तो स्माइल करते थे। And then when in 2006, no, sorry, 2007, 1 week before he left his body, he said कि तू वापस जा इंग्लैंड। तो ऐसे गुरुजी अब मैं वापस क्यों जाऊंगी, अब तो मुझे इंडिया बहुत पसंद है। आई फॉलन इन लव विद इंडिया, मुझे नहीं वापस इंग्लैंड जाना। कहते थोड़ी देर में से जा, माँ दी सेवा कर एंड उत्थे सत्संग शुरू कर और तू जगह जगह जाएंगी, सत्संग कर, सेवा है तेरी। एंड अक्रॉस एवरी कॉन्टिनेंट, कंट्री, सिटी इन द वर्ल्ड। देखी मेरी जोत जलनी है, जगह जगह जोत जलनी है। और जा मैं तेनू सेवा दिती, जा तू जा। So I was, all three of it didn't make sense to me कि क्या माँ की सेवा करूं, क्या सत्संग शुरू करूं, सत्संग होता क्या, कैसे शुरू करते हैं। But he takes over. I did go to Manchester 2010 में, this is after his माँ समाधि। My daughters both flew their nest and वो अनिष्का USC में चले गई 2009 में, and 2010 सोनाक्षी my younger one, 1 साल का फर्क है दोनों में, वो NYU चले गए। तो दोनों चले गए तो मम्मा को पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो गया और गुरुजी को ये पता था। तो naturally then mom was all left all alone because dad died in 2009 of cancer. He had cancer multiple times and finally he resigned to it. तो ये सारा गुरुजी को obviously with his foresight and vision, divine vision, उन्होंने ये सब पहले ही देख लिया था। तो उन्होंने कहा मानू तेरी जरूरत पड़ेगी। सो द लॉन्ग टू शॉर्ट, मैं गई थी वापस एंड वहाँ सत्संग गुरुजी ने शुरू किए मैनचेस्टर में। एंड उस टाइम 5 जने थे हम, मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स ने शुरू किया मेरे साथ जस्ट टू सपोर्ट मी। उनको नहीं पता था गुरुजी कौन है, पर ऐसे ही स्टार्ट होता है हर जगह। एंड देखते देखते संगत बहुत बहुत बढ़ गई, अब तो 1000 से ऊपर है एंड मे बी मोर एक्चुअली। तो ये गुरुजी की महिमा है। एंड फिर आई एम गोइंग टू फास्ट फॉरवर्ड क्योंकि बीच में ब्रेस्ट कैंसर भी हुआ गुरुजी के जाने के बाद, ऑटोइम्यून डिजीज हो गया मुझे। पर हर बार जैसे गुरुजी ने कहा था कि मैं 90% अपने ते ले लाना, 10% ਤੁਹਾਨੂੰ झेलने देना, बिकॉज दैट इज और जहाँ हमारे लाइफ लेसन्स है, जहाँ हमें ह्यूमिलिटी सीखते हैं, हम कंपैशन सीखते हैं, बीइंग काइंड टू एवरी काइंड, जस्ट टू बी ह्यूमेन। गुरुजी कहते से चंगा इंसान बनो, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੀ सकते हो। For the ocean of blessings that I give you, just give me a drop of your goodness. सिर्फ चंगा इंसान बनो और ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੀ सकते हो, फूल चढ़ाते हो, भोग लगाते हो, मैं मेरा ही तो ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ सब कुछ। तो ਤੁਸੀਂ सिर्फ अच्छे इंसान बनो और गुरु दी राह ते चलो। गुरु जी ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ तो गुरु दी भी मनो। तो उनकी राह पे चलो, टू वॉक द टॉक, टू रियली वॉक द पाथ ऑफ गुरु जी। जो जो उन्होंने सिखाया, 1 घंटा याद करो कल्ले बैठ के भी, मैनू याद करो, मंत्र जाप करो, मंत्र जाप में बहुत वाइब्रेशंस है। एनीवे ये थेरी है, जब तक हम नहीं एक्चुअली प्रैक्टिस करते। शिवपुराण भी गुप्त पढ़ो, ऑफ कोर्स होता है ऑनलाइन, ग्रेट, पर अपने लिए भी पढ़ो, अपनी फैमिली के लिए पढ़ो, घर में पढ़ो अकेले बैठ के भी। और मंत्र जाप भी अकेले करो, सब कुछ अकेले भी करो, ये बहुत ज़रूरी है। एंड बिकॉज़ जो आप गुप्त पाठ करते हो वो बहुत ज़रूरी है। गुरुजी ने बोला था गुप्त पाठ, गुप्त सेवा, गुप्त दान। दिखावा नहीं है कुछ भी। सोशल मीडिया के एज में सब कुछ दिखावा हो गया है, पर कुछ नहीं दिखावा गुरुजी के लिए, क्योंकि गुरुजी को नोज़ हमारा भाव, ही नोज़ आवर हार्ट, ही नोज़ कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। फास्ट फॉरवर्ड, वो गुरुजी ने ब्रेस्ट कैंसर भी ठीक कर दिया। ऑटोइम्यून डिजीज़ ऑफ कोर्स इज़ कंटेन्ड, आता है, जाता है।
और बाकी इम्यूनिटी जब लो होती है, एंड कोविड हुआ था 3 टाइम्स, लाइफ थ्रेटनिंग कोविड, तो गुरुजी के मंदिर से ही लंगर आ रहे थे, एंड दैट वाज व्हाट सेव्ड मी. I cried one day for when my oxygen level was dropping. I said, Guruji, kahin se bhi. And there was a lockdown. First, I was in a lockdown in Dubai, and then the second wave, मैं दिल्ली आ गई थी. And second wave जो था, worse than first wave था. And मैं अपने कमरे में थी और गुरुजी का स्वरूप है वहाँ पे. And I was crying out कि गुरुजी, अभी तो बच्चों की शादी भी नहीं हुई, बहुत यंग है, मुझे प्लीज लंगर भेज दीजिए. एकदम फोन आता है बड़े मंदिर से एंड छोटे मंदिर से भी कि हम लंगर प्रसाद भेज रहे हैं आपके लिए. ये मतलब गुरुजी अंग संग है हमारे. ये प्रूव करते हैं बार बार कि जब हम उनकी तरफ देखते हैं तो वो हमारी तरफ क्यों नहीं देखेंगे, वो हम उनको याद करते हैं तो वो हमें क्यों नहीं याद करेंगे. सो ये भी बहुत बड़ी सीख है कि हमें एब्सोल्यूट फेथ रखना चाहिए इस चीज पे कि गुरुजी हमें हमारे साथ है. फास्ट फॉरवर्ड टू दिस ईयर, मैं दुबई में थी 2 महीने बिकॉज मेरे बच्चे भी वहाँ रहते हैं, एंड मैं आती जाती रहती हूँ. सो मैं दुबई चले गई दिसंबर में और जनवरी में 2 महीने, और बीच में वापस मैनचेस्टर भी चले गई दुबई से. एनीवे, सत्संग होते गए, इट वाज ब्यूटीफुल, मैनचेस्टर में भी, दुबई में भी. फिर मैं आई वापस February 3 को, एंड मैं काफ़ी टायर्ड थी. और एक संगत है जॉर्जिया की, उसने बोला कि अनीता आंटी, आपको याद है लास्ट ईयर मैंने बोला था कि फरवरी में कुवैत चलेंगे. आई सेड हाँ याद तो है पर अभी हिम्मत नहीं है. तो कहती नहीं नहीं चलो ना, आप थोड़ा रेस्ट कर लो 1-2 हफ्ते और चलते हैं. पर मेरी बहुत ट्रैवल हो गई थी, एंड ऑफ कोर्स मैं अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं कर रही थी, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं कर रही थी. एंड मैं चलती जा रही थी बस. एंड मुझे लग रहा था मेरी बॉडी ब्रेक हो रही है. मैंने कहा नहीं, मेरे से होगा नहीं. पर वो जो लिखा है वही होगा. एंड आई थिंक आफ्टर 10 days वो फिर भी बार बार फोन कर रहे हैं, नहीं नहीं जाना है जाना है जाना है. वो एक संगत बहुत एक्साइटेड है, आपने जाना है. द लॉन्ग टू शॉर्ट, 20th of February हमने बुक किया. मैं चले गई यहाँ से, वो वहां से आ गई जॉर्जिया से. और मेरे मन में आया बड़ा क्लियर, जैसे मैं पैकिंग कर रही थी, कि आई होप ईरान को अटैक ना किया जाए while I'm there. थोड़ी इनसिक्योरिटी थी, थोड़ा सा इंट्यूशन कह लो. को हम सब न्यूज़ पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा, तो हमें पता ही है क्या हो रहा है वर्ल्ड में. तो वर्ल्ड अफेयर्स से बहुत हम अवेयर हैं. ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखना, गुरुजी बोलते थे नेगेटिविटी नहीं लेनी. आजकल मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत है, फेक न्यूज़ भी बहुत है, पर अवेयरनेस तो है और रखनी चाहिए. तो मैंने सोचा आई होप ईरान को अटैक ना हो जाए बाला में क्वेट. मैंने कहा जो होगा गुरुजी देखेंगे करेंगे. तो एनीवे हम पहुंच गए वहां, एंड रोज सत्संग हो रहा था. रोज मीन्स रोज, कभी कभी 2 बार दिन में भी. एंड मेरी फ्लाइट वापस थी 1 मार्च के लिए. 28th of February हम वॉक कर रहे हैं बाहर ओपन एयर में, एंड सडनली सायरन्स have begun, the sirens. तो जैसे जैसे साउंड आता है, आई एम नॉट फेमिलियर विद द साउंड, मैं कभी वो जोन में हुई नहीं, पर मैंने कहा ये सायरन्स क्या हो रहे हैं. इमीडिएटली संगत से घर जाना है, हमें घर जाना है, वो शुरू हो गई है. तो आई सेड ओके. सो आई थॉट 1-2 दिन की होएगी, 3 दिन की होएगी, इट विल गेट रिजॉल्व्ड. एंड हम चले गए अंदर. पर एवरी डे फॉर अ वीक एटलीस्ट 10-12 सत्संग्स हो चुके थे. एंड मुझे भी समझ आ रही थी थोड़ी थोड़ी कि यू नो ये गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे हैं. क्योंकि 2011 में भी मुझे सबसे पहले जब मेरा इंटरनेशनल सत्संग शेयरिंग था, वो भी कुवैत में ही था सबसे पहला, एंड 2011 में था वो. एंड उस टाइम ब्रेकफास्ट लंच डिनर गुरुजी शेयर करवा रहे थे मुझसे. एंड ऐसा लग रहा था कोई प्रिस्क्रिप्शन है कि मतलब 3 times a day फॉर अ होल वीक मुझे शेयर करवा रहे थे गुरुजी. मुझे समझ आ गई थी कि कुछ है अंदर जो ठीक नहीं है. और वाकई जब मैं वापस आई तो डायग्नोज हुआ ब्रेस्ट कैंसर, 3 ट्यूमर्स थे. एंड वो गुरुजी ने लेकिन कैसे स्मूथ सेलिंग के साथ कटवा दिया वो कर्म. सो इस बार भी जब कर रहे थे मेरे अंदर था आई होप आई एम वेल, बिकॉज इतना करवा रहे हैं, इतना शेयर कर रही हूँ, आई होप एवरीथिंग इज ओके इन माई बॉडी.
But anyway, overthink नहीं करना था. The focus became the war. And हमारी फ्लाइट जो 1 मार्च थी, एयरपोर्ट शट, एयर स्पेस बंद हो गया, वो फ्लाइट कैंसिल हो गई ऑफ कोर्स, एंड वो टिकट भी वेस्ट हो गई, विच इज़ फाइन, विच इज़ जान है तो जहान है. गुरुजी had better plans, I guess. Thereafter 3 weeks हम रोज सत्संग करते हैं. रोज मीन्स रोज, एक दिन भी नहीं मिस हुआ, एवरी डे. सो आप मान सकते हैं 30 days में कितने सत्संग करवाए गुरुजी ने. एंड जस्ट टू से कि गुरुजी ने हमें इतना पॉजिटिव कर दिया कि जब सत्संग करते थी तो संगत इतनी हैप्पी थी, उनके स्पिरिट्स लिफ्ट हो जाते थे. और फिर वो बोलते थे गुरुजी ने आपको भेजा हमारे लिए, बिकॉज हम बहुत घबराए हुए हैं. दिस इज नॉट द फर्स्ट वॉर एक्सपीरियंस दैट कुवैत इज हैविंग. एंड हम बड़े पॉजिटिव हो गए हैं. सो गुरुजी, यू नो, ऑब्वियसली वी आर ऑल वेसल्स. हम सब गुरुजी के वेसल्स हैं. कोई नवा नहीं, कोई पुराना नहीं, कोई स्पेशल नहीं. And it's just that we have surrendered as a vessel to, thankfully, and then he employs us as his vessel, which is so beautiful. And what better to be a vessel for Guruji? And one day, long ago, when Guruji left, my favorite Shabad back then used to be Guru Mere Sang Sadai Nale. And when he left his body, I remember sitting in Bara Mandir, and I said, and I was rolling away, sitting in the back on my own, all curled up. Uh, I was literally, I think 40 or something. I was very young. And I just said कि गुरुजी अब आप गए, मतलब आप नहीं हो. और एकदम वो आता है शब्द, गुरु मेरे संग सदा नाले. And I said, really? I mean, are you really there? But of course, growing संगत देख के every Monday, हमें, मुझे विश्वास हो गया कि गुरुजी इज गॉन नोवेयर. इनफैक्ट इफ एनीथिंग, उनकी जो शक्ति है वो और भी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे संगत बढ़ती जा रही है. सो जब मैंने, कमिंग बैक टू द प्रेजेंट टाइम, जब मैं कुवैत में थी तो 30 days हो गए, एंड बहुत पॉजिटिव थी संगत. और हम भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे, अनयूजुअली सो, बिकॉज गुरुजी करवा रहे थे हमें. ही वॉज मेकिंग अ स्टैंड अपराइट, ही वॉज मेकिंग अ स्टैंड फर्म एंड करेजियस. फिर एक संगत की हस्बैंड की डेथ हो गई. तो जिनके घर में रह रही थी संगत के, वो बहुत बहुत ही एलिवेटेड एंड बहुत ज़्यादा, आई वुड से, इवॉल्व संगत है, बहुत मैच्योर है. तो उन्होंने कहा, अनीता, पता नहीं कुवैत एयरपोर्ट कब खुलेगा, लेकिन हमें ये संगत को तो इंडिया भेजना ही भेजना है, बिकॉज ये लास्ट राइट्स तो वहीं होंगे हरिद्वार में. तो आपको जाना है. ईजी नहीं होगा, बिकॉज कुवैत एयरपोर्ट शट है. आपको सऊदी जाना पड़ेगा, और आधी रात को हम भेजेंगे आपको. रोड ट्रिप है. सऊदी में आपको बॉर्डर में वीजा मिलेगा, और दमाम एयरपोर्ट में आप जाओगे, और दमाम एयरपोर्ट से वापस इंडिया जाओगे. इट सीम्ड क्वाइट अ स्मूथ सेल. तो आई सेड, हाँ जी, हम कर लेंगे, बिकॉज जो संगत हमारे साथ थी उनको लोकल लैंग्वेज भी आती थी. तो मैंने, वो कॉन्फिडेंट था, तीन जने थे हम, 3 संगत गाड़ी में. तो मुझे कॉन्फिडेंट था कि ये संगत जो है, तो शी इज लॉस्ट हर हस्बैंड, she will be at least, she'll be our support, like we are her support, she'll also be our support, because she speaks the local language, it helps. And then we will be like together sharing our satsangs in the car. So I was very upbeat and positive. सऊदी पहुंचे, सऊदी का वीजा मिल गया. दमाम एयरपोर्ट पहुंचे, जैसे लगेज ऑफलोड किया गाड़ी से, वो गाड़ी चले गई वापस. ऑब्वियसली द कार जस्ट केम टू ड्रॉप अस. तो गाड़ी चले गई वापस. हमने बोला भी नहीं कि आप रुको जब तक हम चेक इन नहीं करते, हमने सोचा ही नहीं. तो गाड़ी वापस चले गई कुवैत. तो 3 AM थे, एंड जैसे हम अंदर आए तो खाली एयरपोर्ट, बिल्कुल खाली. एंड विच वॉज वेरी अनयूजुअल. मैंने कहा, फ्लाइट है हमारी 5 घंटे में. नो सॉरी, नो 5 घंटे. इट वॉज at 12 noon, और हम 3 AM पहुंच गए, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, बिकॉज प्रिकेरियस सिचुएशन था, तो हमें पता नहीं था क्या हो सकता है क्या नहीं. तो 3 AM पहुंच गए, एंड फ्लाइट थी नून में. लेकिन जैसे मैंने डिपार्चर बोर्ड देखा, all flights cancelled. And then one of the guys behind the counter, which was very few, काउंटर्स तो सारे बंद ही थे. तो कहते हैं, आप यहाँ कर क्या रहे हो? हमने अभी तो सारे पैसेंजर्स को बेसमेंट में भेजा है, क्योंकि मिसाइल्स हिट हो रही है यहाँ पे. एंड
इट्स वेरी डेंजरस फॉर यू टू बी आउट हियर, आप कर क्या रहे हो यहाँ पे? तो उस मोमेंट में, दैट वाज माय मोमेंट ऑफ, यू कैन से, सरेंडर. आई लुक्ड एट द बोर्ड, आई लुक्ड एट हिम, आई रियलाइज्ड कि हम वापस तो जा नहीं सकते अब कुवैत, बिकॉज हम एक्सिट कर गए, किसी के पास वीजा नहीं है, एंड आगे कहाँ जाना है, क्या करना है? तो आई सेड व्हेन विल द फ्लाइट्स रिज्यूम? कहते पता नहीं, 48 आवर्स भी लग सकते हैं, 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन में एयरस्पेस बंद हो गया है. तो हमने उस टाइम, इंस्टेड ऑफ चिंता करना, हम चिंतन करने लगे. हम बैठ गए स्टारबक्स में, मंत्र जाप किया, पॉजिटिव रहे. बिलीव यू मी व्हेन आई से दिस, इट्स नॉट जस्ट थ्योरी. हम एक्चुअली अपराइट बैठ के हमने कहा, गुरु जी, अब हमारी लाइफ की जो डोरी है वो आपके हाथ में है. And whatever you will, whatever is your wish, because your wish is my command. Up, you know, we have no choice. So, अब आपकी choice है. अब आप decide कीजिए हमारी क्या destiny है. And Mrs. Hitori, whatever you say, पर हम अपना कर्म करें. हम बैठे, मंत्र जाप किया audibly and unapologetically. हम वहाँ बैठे स्टारबक्स में, हम तीनों ने मंत्र जाप किया. एंड करते करते 8 बज गए सुबह के. एंड 3 चीजें रियलाइज हुई 8 बजे सुबह तक, कि वी आर प्रोटेक्टेड, गुरु जी की प्रोटेक्शन हमेशा हमारे साथ है, और दिस इज योर मोमेंट ऑफ सरेंडर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट इज. एंड कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है. सो रिलिंक्विश कंट्रोल इन एवरीथिंग, बिकॉज लिटरली दैट मोमेंट आई रियलाइज कि कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है. संगत का फोन आता है कोई से, क्योंकि हम कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली नाउ 8 AM है, हम कहते हैं कि हम अब कर सकते हैं, पहले डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे उनको. 8 AM वो कहते हैं कि अब रियाद चले जाओ. वेरी हार्रोइंग जर्नी, एंड हार्रोइंग जर्नी जरूर है. एंड इट्स बट यू हैव टू गो थ्रू इट, और कोई आपका चॉइस ही नहीं है. 5 hours लगेंगे. रियाद डेजर्ट है, एग्जैक्ट ओनली डेजर्ट फॉर 5 hours. सो अब घबराना नहीं. ऑयल टैंक्स भी है ऑन ईदर साइड, पर गुरुजी आपके साथ है. हम बाहर आए, हम सब टैक्सीज ने मना कर दिया कि वो रियाद नहीं जाएंगे बिकॉज ऑफ द रिस्क. And then this Sangat of ours who could speak the local language, she convinced one of the drivers, and वो हमारे साथ बैठ के और कहता है, ठीक है, मैं ले जाता हूँ आपको. I don't know what she said to him, maybe that I'll pay you extra, whatever. So, but he was convinced finally. First, though, he kept refusing forever, and then he said, okay, I'll take you. Now, we were in touch with Riyaz Sangat फ्रॉम कुवैत. कुवैत में मुझे, जब मैं थी तो मैंने आरती आंटी को फ़ोन किया कि मैं कुवैत में. वो कहती, आंटी आप मुझे पता ही है आपकी सेवा, आपने बुक्स भी पढ़ी हुई हैं जो भी, तो आप आ जाओ रियाद. मैंने कहा नो नो, मैं तो सिर्फ हफ्ते के लिए आई हूँ कुवैत, मैं वापस इंडिया जा रही हूँ, मुझे इंडिया जाना है, बिकॉज 2 महीने दुबई, एंड आई हैव जस्ट बीन ट्रैवलिंग, आई वांट टू ग्राउंड माई सेल्फ. ये कभी बोलना नहीं चाहिए क्या, बिकॉज गुरु जी ने कहा मैं तेन ग्राउंड ही कर रहे हैं, मैं तेन कुवैत में ग्राउंड कर रहा हूँ, सो आई सेड आई एम सॉरी बट आई वांट टू गो बैक टू इंडिया, मुझे अपनी ट्रैवल करना, मैं रियाद नहीं आऊंगी. पर देखो, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस. तो हम रियाद जैसे आधे रास्ते चले गए हैं, तो जो मेरी जॉर्जियन की संगत थी, उन्होंने फोन किया टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग. शी सेड हम आ रहे हैं, एंड क्या करें? कहती कुछ नहीं. हंसने लगे, वो तो बहुत ही खुश थी. कहती आप आओ ना, आप आ जाओ रियाद. तो आ, आप 2 बजे पहुंच जाओगे दोपहर के, और 7 बजे का मैं अरेंज कर लेती हूँ सत्संग. इमेजिन. शीशा, लेकिन आप बहुत टायर्ड हो गए, ऑफ कोर्स यू नॉट स्लेप्ट फॉर द फुल 12 hours. सो आप ना आ जाओ, थोड़ा रेस्ट करना, एंड 7 o'clock संगत आ जाएगी. वैसे तो 50 संगत है रियाद में, पर जितनी भी आएगी आ जाएगी, आप आ जाओ. एंड शी इज सो हैप्पी, शी इज थ्रिल्ड. एंड देन आई स्पीक टू हर, सेड आरती, शी सेड हाँ जी, मैंने ना अरदास लगाई थी गुरु जी को कि अनीता आंटी कुवैत आई हुई, उनको भेज दो, मेरा आज बेटे का बर्थडे है, कैसे प्लान करते हैं. एंड आई एम रियली मूव्ड एंड टच्ड कि आप आ रहे हो, बिकॉज मैं अपने बेटे का अब सेलिब्रेट करूंगी आप संगत के साथ.
So we went and we were, of course, like Guruji does, he lays out the red carpet. Guruji तो हर संगत को इतना प्यार करते हैं, इतना pedestal में raise कर देते हैं हर संगत को. And we got that love exuding from the संगत. 7 से 12 1 बजे तक तो हम शायरी करते रहे, बोलते रहे. बहुत एनर्जी थे हमारे अंदर. गुरुजी ने एनर्जी भी डाल दी, पॉजिटिविटी भी डाल दी. फ्लाइट थी 8 बजे सुबह, सो हम शेयर करते गए. उन संगत ने कहा 4 बजे निकलना पड़ेगा आपको रियाद एयरपोर्ट के लिए, जस्ट इन केस, एज अ प्रिकॉशनरी मेजर. हम निकल गए. एंड मेहर थी गुरु जी की. वी रियली, आवर कप वाज फुल, आवर हार्ट वाज फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, ओवरफ्लोइंग विद ग्रैटिट्यूड, आई वुड से. शुक्राना बहुत था, बिकॉज सडनली एनर्जी आ गई सत्संग के साथ. एंड यही गुरु जी करते हैं, इसलिए तो सत्संग सेवा सिमरन कहते थे, क्योंकि ये कलयुग की दवाई है. एंड वी वर चार्ज्ड, वेंट टू रियाद. पर रियाद से दिल्ली एयरपोर्ट फ्लाइट नहीं थी, तो हम हैदराबाद गए. वो फ्लाइट 1 घंटा बिठाए रखे अंदर, बिकॉज दुबई को अटैक कर दिया उन्होंने. सो कहते हैं स्पेस खुला नहीं है, हमें पता नहीं हम क्या करें. पर 1 घंटा बैठे रहे फ्लाइट के अंदर. अभी भी मतलब था कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे. इट वाज अ वेरी अनसर्टेन प्रिकेरियस सिचुएशन, कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे. वही मंत्र जाप करते रहे, बैठे रहे विश्वास में कि अब जो होगा गुरुजी अच्छा करेंगे. फ्लाइट में थोड़ा सा हल्का सा डर भी लगता है. फ्लाइट टेक ऑफ हो गई तो कोई डेंजर तो नहीं है, नेचुरली अगर मिसाइल्स आ रही है, जा रही हैं, तो फ्लाइट में बैठे हुए एंड मंत्र जाप किया, विश्वास किया, तो 1 डेढ़ घंटे बाद उन्होंने टेक ऑफ कर दिया. पर ऐसी फ्लाइट में कभी नहीं गई जहाँ इतनी टर्बुलेंस, ऊपर नीचे 5 आवर्स. इतना डर लगा. 4 आवर्स टू हैदराबाद. एंड जैसे पहुंचे, साई ऑफ रिलीफ कि हम इंडियन सोयल पे पहुंच गए. एंड वी वर आउट ऑफ द वॉर जोन. इट वाज grateful for life. Grateful for this life, grateful for that experience. बिकॉज मुझे लगता है कि वो फेयर को गुरुजी ने जैसे कन्वर्ट किया टू फेथ, वरी टू वर्शिप, वो सिर्फ वर्ड्स नहीं थे, वो एक्चुअली प्रैक्टिकल में हमने किया. गुरुजी ने कराया. एंड गुरुजी ने कन्वर्ट करता सब कुछ, हमें ही कन्वर्ट कर दिया, हमें ही बदल दिया. कि जो वॉर जोन से थ्रू जा सकता है, वो बैटल विन कर सकते हैं, तो और क्या रह गया. और बाकी तो वैसे भी करेज देते हैं गुरुजी, कि कर्म तो कटने हैं ना. तो चाहे मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ, चाहे स्किन कैंसर हुआ, चाहे अस्थमा हुआ, चाहे होल इन द हार्ट है, जो भी है, गुरुजी ने हमेशा एवरी बैटल में बाद में जिताया ही जिताया. एंड ये भी जो वॉर जोन थी, ये भी बैटल ही बन के रह गई और एक सत्संग ही बन के रह गया. आई वुड से इन गुड ह्यूमर कि बुलेट प्रूफ सत्संग है. बिकॉज रियली कैसे उन्होंने निकाला, आई थिंक आई मे इवन बी मिसिंग द minute and minuscule details, because उस टाइम जो इमोशंस थे, एंड वो कुछ और ही था. एक्सपीरियंस सरियल था, रियल नहीं था. पर उसमें सीख बहुत थी कि ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਸੋ ਵੀ ਫੋਲੋਡ ਐਵਰੀ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਹਿਸ, ਕਿ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ. ਹੁਣ ਫੇਡ ਦਾ ਟਾਈਮ नहीं है, फेथ ਦਾ टाइम है. वरी ਦਾ टाइम नहीं है, वर्शिप ਦਾ टाइम है. तो ये प्रैक्टिकल गुरुजी ने हमारी थ्योरी को प्रैक्टिकल में दिखा के करवाया हमसे, जो आई एम रियली ग्रेटफुल. बिकॉज अगेन एज आई से, आई एम जस्ट अ वेसल, आई एम नथिंग, बट आई एम अ लर्निंग वेसल. I'm still a child in Guruji's school of life, and I'm still learning, and I want to keep learning till the very end. And I hope I'm a good student. I pray to him, make me the best student of yours, Guruji, because I'm here to learn, and I'm here to love, and I'm here to live my best life, because I have Guruji in my life. And there, hence, it is the best life that I can afford to have. So, Jai Guruji, thank you for connecting, and thank you for having me. And Jai Guruji. जय गुरु जी. बहुत सुंदर सत्संग अनीता आपने शेयर किया हम सबके साथ. संगत जी, वो जो शब्द हमें याद आता है कि औखी कड़ी न देखन दे, अपना बिरद संभाले. कैसा भी समय हो, कितनी भी कठिनाइयां हो, कैसे भी रोग लगे हों हमारे शरीर में, गुरु अगर हमारे साथ है तो फिर डर की क्या बात है.
आप देख रहे हैं, अनीता ने बताया कितनी एलिमेंट्स उनके शरीर में हैं, लेकिन उससे ज़्यादा गुरु का प्रभाव है उनके शरीर पर। कितने बड़े वार ज़ोन से निकल के आना और कैसी परिस्थितियाँ, इधर से उधर, उधर से इधर, लेकिन गुरु को साथ रखा तो वो समय इतना आसान, इतना सहज हो गया। यही यही सबक है। और जो एक बहुत सुंदर बात अनीता ने कही कि हमको सीखते रहना है। देखिए, जब हम ये तय कर लेते हैं ना कि हमारा तो ये स्कूलिंग जो है 12वीं क्लास क्लास तक था, अब स्कूल छोड़ना पड़ता है। फिर जब ग्रेजुएशन हो जाता है तो कॉलेज छोड़ना पड़ता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होता है तो इंस्टीट्यूशन छोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि हमें पढ़ना है, हमें पढ़ते रहना है, हमें गुरु से ज्ञान अर्जित करते रहना है, तो फिर गुरु नहीं छूटता, फिर वो इंस्टीट्यूशन नहीं छूटता। तो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल अनीता, थैंक यू सो मच। तो संगत जी, एक बार फिर से आप सबको बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी की विशेष कृपा होती है इन पर्वों पर, इन फेस्टिवल्स पर। तो हम सब ये अपने मन में विश्वास रखें कि गुरु जी हमारे साथ हैं और गुरु जी हमारा साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। हम ना छोड़ें, बस डर इस बात का है। तो आइए अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हैं और फिर इसके बाद आज्ञा ले लेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी
सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आगे जय गुरु गुरु जी। जी, शुक्राना गुरु जी। हैप्पी विसाखी गुरु साहिब जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना थैंक यू निदान जी, थैंक यू सो हैप्पी विसाखी मच। जय गुरु जी महाराज। नमस्ते हैप्पी विसाखी शुक्राना टू गुरु जी ऑल महाराज। संगत। शुक्राना जय गुरु गुरु जी जी। महाराज। जय गुरु जी। थैंक यू, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम जय अनंतम गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम महाराज। अनंतम जय शुक्राना गुरु गुरु जी शुक्राना गुरु महाराज। जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना महाराज। शुक्राना मेरे मालिक। थैंक यू गुरु जी। बख्श दो।